Good evening, everyone. Let us start our session with a meditation. Sit back comfortably and focus between the center of your forehead. Deep breath in, deep breath out. You are the pure, bountiful soul of your soul. You like a deep light. Repeat in your mind. Never look at myself and be so and the power. Use thoughts and those for him AI. Whether I'm sitting in a closed room or miles away, my thoughts empty. They receive from me, and that becomes the foundation of our relationship. From today, I pay attention to the thoughts I create for everyone, be it friends, family, or strangers. I don't ponder over their behavior and negativities. I pay attention to the thoughts I create. I put a full stop. I understand them and adapt myself to be with them. And both decline certain negative sense they are originally beautiful souls. Thoughts are pure, and I pay attention to my family. How I deal with others is my responsibility, irrespective of how they behave with me. My each thought creates a shadow. Thank you, everyone. Today's chapter is Pink Pen of Thought Image. Suresh Oberoi. He had said that our thoughts and vibrations reach others faster than our actions. Recently, a particular team member's behavior was stressing out the rest of our team to such an extent that everyone wished he would go on. One morning, when a relative of his was going to visit, this team member asked me if he could also date with him. When I asked him why he wanted to quit, he said, although he could not quite explain the reason, all of us had internally wished for him to leave, and it was as if those thoughts and vibrations actually reached him. सुरेश अभिलाष जी कहते हैं जैसे सिस्टर शिवानी हमेशा बताती हैं कि हमारे थॉट्स एंड वाइब्रेशंस दूसरों तक हमारे एक्शन से भी पहले पहुंच जाते हैं इनका रिसेंटली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक टीम मेंबर थे
जो कि जिनके बिहेवियर की वजह से पूरी की पूरी टीम को बहुत दिक्कत हो रही थी और सब लोग ये चाहते थे कि वो टीम को छोड़ करके चले जाए। एक दिन वो आए इनके पास और उनका कोई रिलेटिव था जो दिल्ली जा रहा था, तो इस टीम मेंबर ने उनसे पूछा कि क्या मैं भी चले जाऊं। जब सुरेश जी ने उनसे रीजन पूछा कि वो क्विट करना चाहते हैं इस जॉब को, तो वो कहने लगा कि वो इनके साथ में अब काम नहीं करना चाहता है और वो रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो सुरेश जी कह रहे इंटरनली तो लोग चाहते थे कि वो चला गया, और ऐसा फील हो रहा था कि जो इन लोगों के थॉट्स एंड वाइब्रेशंस थे वही उस तक पहुंच गए। मिस्टर शिवानी एक्सप्लेन करते हैं, एब्सोल्युटली, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन क्रिएटिंग दोस वाइब्रेशंस। तो उनसे पूछ रही हूँ कि आप कब से वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे थे आप लोग। तो उन्होंने बताया 2 to 3 days। इट वर्क्स एवरी टाइम, एनीवन कैन ट्राई इट आउट। तो ये हमेशा ये काम करता है, कोई भी इसे ट्राई कर सकता है। Earlier, I was not convinced that really sending someone vibrations of love could improve relations between us. But this incident had completely changed my view. If our vibrations could have a negative influence in this case, they will definitely have a positive effect when we try to make things work. सुरेश जी कह रहे हैं कि पहले इनको विश्वास नहीं होता था इस तरह से वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचती हैं, रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकती हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा चेंज हो गया, इन्होंने एक्सपीरियंस शो करा। तो अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस इस तरह से इफेक्ट करती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी तो थिंग्स वर्क करने में हेल्प कर सकती है। सिस्टर शिवानी कह रही है, few people criticize someone and collectively send him strong negative vibrations. Those will definitely reach him and make him feel uncomfortable and unwanted. अगर कुछ गिने चुने लोग भी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं और कलेक्टिवली उसको नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, तो वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचते भी है और फिर उस पर्सन को, उस सोल को uncomfortable and unwanted feel भी कराते हैं। It was strange to realize that our thoughts, which a couple of us had created in a closed room this far ago, had reached our team member. And the only explanation he had for wanting to leave was that he did not feel like staying with us anymore. सुरेश जी कह रहे हैं, बहुत स्ट्रेंज है कि जो थॉट्स ये गिने चुने कुछ लोगों ने क्रिएट किया था, एक बंद कमरे में क्रिएट किया था, इतनी दूर क्रिएट किया था, वो भी उस टीम मेंबर तक पहुंच गई और उसके पास जाने का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता था। वो बस यही कह रहा था कि वो उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहता है। He did not feel like staying on because he was constantly receiving something negative. As we discussed previously, the vibrations we send others create similar quality of thoughts in them, so we have a responsibility. सिस्टर शिवानी कह रही है, वो नहीं रहना चाहता था कि उसको कॉन्स्टेंटली वो नेगेटिव वाइब्रेशंस ही रिसीव हो रही थी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है, वाइब्रेशंस जो सेंड करते हैं दूसरों को, वो ही सिमिलर क्वालिटी ऑफ थॉट्स भी उनके अंदर हमारे लिए क्रिएट होने लग जाते हैं, जो हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इस बुक के, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी जिसे कहते हैं। इसीलिए क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम किस तरह के थॉट्स दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो उन तक पहुंच रहे हैं। जो अगर हम हेवी एनर्जी क्रिएट करेंगे दूसरों के लिए, तो फर्स्टली वो किसको डिप्लीट करेगी, वो हमें ही डिप्लीट करेगी, क्योंकि उन थॉट्स का क्रिएटर कौन है, वो खुद हम है। When I thought negatively about that team member, did I get depleted? सुरेश जी पूछ रहे हैं कि जब मैंने उसके बारे में नेगेटिवली सोचा, तो क्या मैं भी डिप्लीट हुआ, मेरी एनर्जी भी डिप्लीट हुई। सिस्टर शिवानी एक्सप्लेन करता है, हाउ डिड यू फील व्हाइल थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट हिम। आपको कैसा फील हो रहा था खुद जब आप नेगेटिवली सोच रहे थे। फर्स्ट वी क्रिएट नेगेटिव थॉट्स अबाउट अनदर पर्सन एंड फील डिप्लीटेड, those vibrations reach him and he is depleted, then our relationship with him weakens। पहले अगर हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं दूसरों के बारे में, तो पहले कौन डिप्लीट होता है, हम खुद डिप्लीट होते हैं, और उसके बाद वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचती है, फिर वो भी डिप्लीट होता है और फिर हमारा जो रिलेशनशिप है उसे वो वीकेंड करता है। They can also create similar thoughts in response to us, and those vibrations reach us and affect us। अब जब उस तक वो वाइब्रेशंस पहुंचे
हमारा रिलेशनशिप वीक कैसे होगा? क्योंकि वो भी सिमिलर थॉट्स ही उसके रिस्पॉन्स में क्रिएट करेगा, फिर वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो हम तक पहुंचेगी, हमें अफेक्ट करेगी। तो ये जो गेम है ना, पिंग पोंग ऑफ एनर्जी, ये कंटिन्यू होता रहेगा, दिनों में, डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में, and even decades में भी। As we had been discussing about energy exchange, we were able to put two and two together and make sense of why your team member had behaved in that. जब हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, तो अगर हम दो दो लोगों को साथ में लेंगे तो हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज we usually don't accept that we are the reason behind other people's behavior। वरना हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि जो दूसरे का बिहेवियर है वो हमारी ही वजह से क्रिएट हुआ है। जैसे ये जो एनर्जी एक्सचेंज चल रही है ना, सुरेश जी ने इतना डीपली समझा, तभी तो उन्होंने कहा ना कि वो टीम मेंबर क्विट कर गया। उसके पहले क्या रीजन था? क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस उसके बारे में खराब यही लोग सोच रहे थे, उसके बाद वो क्विट करके गया ये कहकर कि वो इन लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता है। अगर हम ऐसा सोचेंगे ना एनर्जी एक्सचेंज को लेकर, तब हमें ये सिनारियो समझ आएगा, वरना तो हम यही सोचते रहेंगे। तब if we did not know the background about transfer of vibrations in this incident, तो इस इंसिडेंट में जो वाइब्रेशंस का ट्रांसफर है वो बैकग्राउंड में हमें समझ आ गया है, we would have probably blamed the team member inside। अगर हमें ये चीज नहीं समझ में आई होती कि वाइब्रेशंस एक्सचेंज हो रही है, तो अगर हम अनअवेयर होते इस नेगेटिव वाइब्रेशन एक्सचेंज के बारे में, तो हम क्या सोचते टीम मेंबर के बारे में? ही मस्ट हैव हिज ओन रीजंस फॉर लिविंग। उसका छोड़ने का खुद का रीजन होगा। We would even have said that he anyway was not behaving properly for so many days। वो खुद भी तो बिहेव नहीं कर रहा था ना प्रॉपरली। We would have assumed that his decision to quit must be due to his own will, and it was better for everyone that he had decided to leave। हम ऐसा भी सोच सकते थे, सुरेश जी कह रहे हैं कि हम ऐसा भी सोच सकते थे कि जो डिसीजन था ना उसका क्विट करने का, वो खुद ही उसका खुद का गिल्ट होगा, क्योंकि वो ही तो खुद से नहीं बिहेव कर रहा था ना, इसीलिए वो छोड़ के चला। Even if we do not want the other person to leave because we need him at work, or want that relationship to continue, we do not change the quality of our thoughts। We simply ask him to stay back। In this case, the person may stay on for a few more days, but as the old pattern of energy exchange continues, eventually this same situation unfolds। अगर हमें, जैसे इस वाले केस में क्या था, वो टीम मेंबर छोड़कर चला गया, मान लेते हैं उस टीम मेंबर की जरूरत कोई काम की वजह से, तो वो लोग उसको रोकना चाहते थे, या फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप में कुछ हो गया, रिलेशनशिप वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, और वो लोग अपने क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज नहीं कर रहे, वो नेगेटिव की नेगेटिव ही पड़ गए, तो क्या होगा? वो पर्सन रुक जाएगा कुछ और दिन के लिए, लेकिन फिर भी लास्ट में सेम सिचुएशन आएगी, वो आखिरकार छोड़ के ही जाएगा, क्योंकि ओल्ड पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज की वजह से क्या हो रहा है, वैसे ही थॉट्स वो लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में, फिर उसको अनवांटेड अनकंफर्टेबल फील होगा और अल्टीमेटली वो लीव ही करेगा। It is a half-hearted attempt at making someone stay and doing things out of compassion। सुरेश जी कह रहे हैं कि ये तो जैसे हम लोग कुछ अटेम्प्ट करते हैं ना, पूरी कोशिश नहीं करते, हाफ हार्टेड, आधे मन से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं दूसरे को रोकने की, कोई मजबूरी है ऐसा लग रहा है। फर्स्ट वी जस्टिफाई आवर ओन थॉट्स एंड देन वी ब्लेम द अदर पर्सन। द मोमेंट वी पॉइंट अ फिंगर एट द अदर पर्सन, द रिलेशनशिप गेट्स आउट ऑफ हैंड। पहले हम क्या करते हैं? अपने खुद के थॉट्स को जस्टिफाई करते हैं कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन तो है हमारे पास, ये सामने वाला ही बंदा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे को ही ब्लेम कर देते हैं। जैसे ही हम दूसरे को ब्लेम करेंगे, जो रिलेशनशिप है वो आउट ऑफ हैंड चला जाएगा। What if we never wanted this relationship in the first place? What if we are never going to meet that person again? क्या होगा अगर हमें ये रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं फर्स्ट प्लेस में, और क्या उस पर्सन से हम दोबारा मिलेंगे? तो सिस्टर शिवानी कह रही है कि रिलेशनशिप मीन्स वी हैव अ कार्मिक अकाउंट विद दैट सोल। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि हमारा कार्मिक अकाउंट है वो सोल के साथ में। इसको अंडरलाइन करेंगे, कार्मिक अकाउंट विद द सोल। और हम अभी जिन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, तो हम रोल के हिसाब से देखते हैं, मदर चाइल्ड, फ्रेंड फ्रेंड,
लेकिन एक्चुअली हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो एक कार्मिक अकाउंट होता है, और एक सोल के साथ में। भले ही हमारे लाइफ चेंज हो जाए, बर्थ चेंज हो जाए, लेकिन हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू होता ही है वो कार्मिक अकाउंट। डू यू मीन दिस रिलेशनशिप एग्जिस्टेड इन द पास्ट लाइफ एंड विल कैरी फॉरवर्ड? सुरेश जी पूछ रहे हैं, आपका मतलब क्या है कि ये रिलेशनशिप हमारा पास्ट लाइफ से चलते आया था और अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा? सिस्टर शिवानी कह रही है नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं। सपोज द सेंड द अदर पर्सन नेगेटिव वाइब्रेशन एंड ही डिसाइड्स टू गो अवे। Since we are unlikely to meet again, we do not try to make things better. What does he take along with him while parting from us? सपोज करते हैं ये जो पर्सन है इसको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिली और वो चला गया। अभी हमें क्या लग रहा है, इस पर्सन से तो हम मिलने वाले हैं नहीं, तो हम भी चीजों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन जाने से पहले वो पर्सन अपने साथ क्या लेकर गया? He carries with him the experience of pain. वो अपने साथ में पेन का एक्सपीरियंस लेकर गया। So what quality of thoughts will he create in future and at whom would those be directed? तो फिर फ्यूचर में वो किस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट करेगा और किसके लिए क्रिएट करेगा, किसके तरफ वो थॉट्स पहुंचेंगे? Those negative thoughts will radiate to me. सुरेश जी कह रहे हैं ये तो नेगेटिव थॉट्स मेरे तरफ आएंगे। This can go on for long and as many times as it is about you. ये जो नेगेटिव थॉट्स का ट्रांसफर है ना, ये बहुत लंबा भी चल सकता है। जितनी बार वो आपके बारे में सोचेगा उतनी बार ये चलेगा। You had once shared an experience when just by looking at someone's photograph, I could feel the same negative feelings for him as you did 20 years before. This means you continue to send negative vibrations to him even several years later. इसलिए इस बुक में ही एग्जाम्पल दिया हुआ था, पर एक चैप्टर में सुरेश जी ने जिसमें बताया था कि एक पर्सन थे जिनकी फोटोग्राफ देख करके 20 साल पहले कुछ हुआ था उनके बीच में, उनकी फोटोग्राफ 10 साल बाद में भी कर करके उनके मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती थी, एंगर फ्रस्ट्रेशन आता था। तो सिस्टर शिवानी ने का एग्जाम्पल लेकर कह रही है कि अगर आप इतने सालों बाद में भी नेगेटिव वाइब्रेशन इनको सेट कर रहे हो, तो जो पर्सन है, जो टीम मेंबर के बारे में आपने अभी एग्जाम्पल दिया, तो क्या वो नहीं सेट करते हो? मतलब सो पर्सन हु लीव्स बिकॉज़ दे विल आल्सो थिंक नेगेटिवली अबाउट हर लेटर। कोई अगर पर्सन है जो कि क्विट करके जाता है आपकी वजह से, वो भी आपके बारे में नेगेटिवली ही सोचेगा आगे। Whenever he hears your name somewhere or watches you on TV, he will create the same quality of thoughts. जब भी वो आपका नाम सुनेगा या फिर आपको टीवी पे देखेगा, क्योंकि सुरेश जी एक एक्टर है और ये जो ये बुक भी हम जो पढ़ रहे हैं बीइंग लव, ये भी अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी एक टीवी शो आता था, उसी का सब कुछ, उसी के एपिसोड्स का ये ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है। तो जब भी वो आपको टीवी में देखेगा या आपका नाम सुनेगा, तभी भी वो आपके बारे में नेगेटिवली सोचेगा। He will create the same quality of thoughts for you as he had been while parting ways. जब वो छोड़ के जा रहा था ना, उस टाइम जो उसकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स थी आपके लिए, वो वैसे ही थॉट्स क्रिएट होती। Just because you had sent him negative energy for 3 days does not mean he will create negative thoughts for you for only 3 days. He will do it for much longer. आपने तो 3 दिन तक उसके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, पर जरूरी नहीं कि वो भी 3 दिन तक ही करे। हो सकता है वो बहुत लंबे समय तक क्रिएट करे। सुरेश जी कह रहे हैं वो तो 3 जन्म तक भी क्रिएट कर सकता है मेरे लिए नेगेटिव। सिस्टर शिवानी कह रही है हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारा अकाउंट होता है दैट इज कैरिड फॉरवर्ड। Is that why they say let's part as friends even if we can no longer work together? सुरेश जी कह रहे हैं इसीलिए क्या लोग कहते हैं कि जब हमें साथ में काम नहीं भी करना होता है तो लेट्स पार्ट विथ फ्रेंड्स, लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स, तभी भी हमें फ्रेंड्स की तरह ही रहना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू डू सो, बट व्हाट डज इट रियली मीन टू स्टे फ्रेंड्स? तो सिस्टर शिवानी कह रही है हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, पर स्टेइंग फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि हम फ्रेंड्स की तरह रहें, इसका मतलब क्या होता है? सुरेश जी कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम मीट करते रहे, इंटरैक्ट करते रहे एक दूसरे के साथ में। दूसरे शिवानी कह रहे हैं नो, staying friends means we will not think wrong for each other despite our differences. Staying friends का मतलब क्या है? हम एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, भले हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। Even though we are separated, we will remain cordial whenever we. अगर हम सेपरेट भी होंगे तभी भी जब भी हम मिलेंगे तो हम cordially एक दूसरे से मिलेंगे। However, two people will not be able to do so if there are unresolved issues pending between them. पर दो लोग जिनके बीच में अनरिजॉल्व इश्यूज हैं पेंडिंग,
वो ये चीजें नहीं कर पाएंगे। It reminds me of two business partners who decided to part ways but stay friends soon after their split. Each started calling their common business associates, asking them to do business only with him and not his ex-partner. सुरेश जी कह रहे हैं इसमें उनको दो बिजनेस पार्टनर्स के बारे में याद आ रहा है, जिनकी पार्टनरशिप जब टूट भी गई थी तब भी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फ्रेंड्स ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो स्प्लिट करके गए, दोनों अपने अपने कॉमन बिजनेस एसोसिएट्स को कॉल करने लगे और कहने लगे कि आप मेरे साथ में बिजनेस करना, मेरे एक्स पार्टनर के साथ मत करना। सिस्टर शिवानी, सो इज दिस पार्टिंग वेज एज फ्रेंड्स? क्या ये इस तरह से पार्ट वेज करना फ्रेंड्स कहलाता है? दिस इज हार्ड कोर jealousy and competition. ये तो हार्ड कोर jealousy and competition है. The thought that they had for each other was you decided to split. Now I'll show you that I can do better than you. इसमें उनकी थॉट्स क्या थी कि आपने डिसाइड किया था ना स्प्लिट करने का, अब मैं आपको शो करूंगा कि मैं आपसे बेटर हूँ। तो पार्ट एज फ्रेंड्स मीन्स they will not think negatively about each other even if our relationship was not a success. अगर कोई फ्रेंड है उसका मतलब क्या हो गया कि हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिवली नहीं सोचेंगे भले हमारा रिलेशनशिप एक सक्सेस नहीं रहा। Coming back to your first example, if that team member leaves you because he felt hurt, he will send you negative vibrations throughout his life. Remembers. जब हमने टीम मेंबर का एग्जाम्पल देखा था ना, तो उसमें अगर हम देखेंगे उसने हर्ट क्रिएट किया, उसका वो हर्ट हुआ इन लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से, तो वो भी अब नेगेटिव वाइब्रेशन अपनी थ्रू आउट द लाइफ वो सेंड करता रहेगा जब भी उसको इनकी याद आए। सो थिंक अबाउट इट, यू मीट सो मेनी पीपल एवरी डे who are not our sense of family. They meet us and then are gone forever. But there is definitely an energy exchange between us. If this exchange is heavy, then they feel uncomfortable while dealing with us. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारी लाइफ के लिए। हम अपनी लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं हर दिन, जो हमारी फ्रेंड्स या फैमिली में काउंट नहीं होते, हम उनसे बस मिलते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में नहीं मिलते। लेकिन डेफिनेटली एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर ये एनर्जी एक्सचेंज हमारे साथ जो हुआ वो अगर हेवी होगा तो वो लोग हमारे साथ अनकंफर्टेबल फील करेंगे। What are we actually doing? We are creating negative investments, the returns of which will keep coming back to us for a long time and deplete our energy. हम क्या कर रहे हैं अगर हमारे वजह से कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो ये एक तरह की नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है। जैसे अगर कभी हम इन्वेस्टमेंट टर्न हमें मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, अगर हम ऐसे कुछ हेवी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी देंगे, किसी को नेगेटिव थॉट देंगे, तो वो एक तरह का नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हम तक पहुंचता रहेगा एक लंबे समय। और अगर वो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है तो नेगेटिव रिटर्न ही आएगा। नेगेटिव रिटर्न यानी नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर आएंगी तो हमारी एनर्जी से डिप्लीट होती रहेगी। I get a message. A person will always remember the way you make him feel. सुरेश जी कह रहे हैं आपको याद आया एक मैसेज कि कोई भी इंसान हमें उस तरह से याद करता है जैसे कि हम उसे फील कराते हैं, हमसे मिलकर उसे कैसा फील होता है, हमारे साथ इंटरैक्ट करके उसे कैसा discussion है। Yes, and the more important thing is that you will send the same quality of vibrations back to you many times over. और इसमें और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गई कि वो जब भी हमें याद करेगा तो वो सेम क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशंस हमें सेंड करता रहेगा। इट मीन्स अ कार्मिक अकाउंट इज क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है कि एक कार्मिक अकाउंट हमारे बीच में क्रिएट हो गया। हमने इन्वेस्टमेंट करी नेगेटिव या पॉजिटिव एंड उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। There are moments when I feel low and I think to myself, why am I feeling sad when I've got everything in the world? Does it mean that at that moment, someone somewhere is sending me back the pain that I had once given him? Do I receive others' thoughts of pain? सुरेश जी कह रहे हैं कुछ समय होता है जब वो बहुत लो फील करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इतना सैड क्यों फील कर रहा हूँ जबकि मेरे पास तो दुनिया में से सब कुछ है। इसका मतलब क्या ये हो गया कि कहीं पे कोई मुझे वो पेन सेंड कर रहा है जो कि मेरी वजह से, क्या मैंने उसे जो पेन दिया वो वापस मुझे सेंड कर रहा है? क्या मुझे दूसरों के थॉट्स ऑफ पेन भी रिसीव होते हैं? सिस्टर शिवानी कह रही है यस, व्हाई नॉट।
You just gave an example of how someone in your office received the negative vibrations that you had created for him. Why will you not receive the ones he created for you? सिस्टर शिवानी कह रही है आपने एग्जाम्पल दिया ना टीम मेंबर वाला जो छोड़ के चला गया था 3 दिन में। तो अगर उस तक वो नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचती है तो क्या आप तक नहीं पहुंचेंगी? अगर कोई दूसरा आप तक क्रिएट करेगा तो आई विल हैव टू बी कॉशियस ना। सुरेश जी कह रहे हैं अब से मुझे ध्यान देना होगा। तो ये कॉशियस तो हमें सबको होना होगा जब हमें ये पता चल गया। ऑन द कॉन्ट्री द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा मेक्स थिंग्स वेरी सिंपल। जब हमें कर्मा के बारे में अंडरस्टैंडिंग आती है तो ये काफी सिंपल हो जाता है। ऑल वी नीड टू रिमेम्बर इज हमें क्या ध्यान रखना है? वॉट एवर बी द सिचुएशन माई थॉट्स क्रिएट माई डेस्टिनी। हमारी लाइफ में चाहे कोई भी सिचुएशन हो लेकिन हमारी जो थॉट्स क्रिएट हो रही है उससे ही हमारी डेस्टिनी बनेगी। संकल्प से सृष्टि। तो हमारे थॉट्स हमें हमेशा अच्छी रखनी होगी। सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है हमारी थॉट। हमारी थॉट इंडिपेंडेंट है और हमारी थॉट हमारी डेस्टिनी क्रिएट करती है। इसीलिए हमारी थॉट्स को हमेशा हमें लिमिटेड रखना है। थॉट्स वी हैव फॉर अदर्स एक्चुअली क्रिएट आवर ओन कार्मिक बैंक अकाउंट। जो हम दूसरों के बारे में थॉट्स क्रिएट करते हैं वही हमारा कार्मिक बैंक अकाउंट create करता है। Once I lost a very expensive watch that my son had gifted me. I told my wife that I suspected one of our house helps. She told me never to create such thoughts for others because they reach them. Was she right? तो ऋषि कह रहे हैं कि उनके सन ने उनको एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट करी थी जो कि उनसे खो गई। तो वो सस्पेक्ट कर रहे थे, वो शक कर रहे थे एक उनके घर में कोई हाउस है कोई नौकर काम करता था उसके ऊपर। लेकिन उनकी वाइफ ने बोला कि आप इस टाइप के थॉट्स नहीं क्रिएट करिए क्योंकि वो उन तक पहुंचती है। तो क्या वो सही थी उनकी वाइफ? If you assume someone to be a thief, you create strong negative vibrations for him. If you are simply checking your mind who all came into the house after you left, that just creates neutral energy. But to pass a negative judgment on someone is a direct attack on that person and it will reach them through vibrations. Then he will revert to you in one way or another. अगर आप किसी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब्रेशन है वैसा क्रिएट करेंगे तो काफी नेगेटिविटी है उस चीज में, एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में सिंपली चेक कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो वॉच है वो नहीं मिल रही थी तो आप अगर सिंपली चेक कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद में घर में कौन कौन आया तो ये न्यूट्रल एनर्जी चाहिए, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। पर अगर आपने किसी के बारे में कोई जजमेंट पास कर दी तो वो तो काफी डायरेक्ट अटैक है उस पर्सन के बारे में जो कि उसको वाइब्रेशंस के थ्रू रीच हो ही जाएगा। उसके बाद में वो भी आपको सिमिलर क्वालिटी ऑफ थॉट्स ही भेजेगा। इन आवर थॉट्स लाई आवर रिलेशनशिप्स कार्मिक अकाउंट एंड आवर डेस्टिनी। हमारी थॉट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी थॉट से ही हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं और हमारी डेस्टिनी भी होती है। Our karmic account is created on the basis of the quality of our thoughts. It is not about the other person, it is about us. जो हमारा karmic account कैसे क्रिएट होता है दूसरों के साथ में? जो हमारी थॉट्स है उसकी क्वालिटी के बेसिस पर। तो ये दूसरे के बारे में नहीं है, ये हमारे खुद के बारे में है। मतलब अगर हम किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं तो वो क्रिएटर हम खुद हैं। दूसरे के बारे में जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं उसके क्रिएटर हम खुद हैं। उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। If we create negative thoughts about someone, for example, in the given situation, we assume someone to be a thief, then that person will no longer be able to think good about us. अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ था ना थीफ वाला, तो अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो थीफ हो सकता है तो फिर वो जो दूसरा पर्सन है अगर हम उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो अब वो भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच पाएगा। लेकिन उसका भी रीजन ही नहीं पता है कि वो हमें डिसलाइक क्यों करने लगा है अचानक से। Sometimes we are unable to pinpoint a specific reason as to why a relationship is not working out. Because everything seems to be apparently fine between the two parties, it means that at some point of time, one of the sides had created heavy negative thoughts for the other. कई बार क्या होता है ना हमें समझ नहीं आता है कि एक रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा है जबकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ऊपर ऊपर से तो लगता है दोनों पार्टीज के बीच में सब कुछ सही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है?
कहीं ना कभी ना कभी किसी ने इन दोनों में से एक दूसरे के लिए नेगेटिव हेवी थॉट्स क्रिएट कर रखी है। दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग गेम। सुरेश जी कह रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम। वन ऑफ माय ब्रदर्स once scolded our niece. She was really offended. When she was never, when she was never so upset. Whenever I scolded her, she said that she never felt hurt by me. So intention must be playing a role here. सुरेश जी अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बार इनके भाई ने इनकी नीज को डांटा और वो काफी ऑफेंड हो गई, लेकिन वो कभी भी अपसेट नहीं होती थी जब सुरेश जी उनको डांटते थे। लेकिन इस बार वो बहुत हर्ट थी। वो कह रही थी कि उनको कभी भी हर्ट नहीं हुआ था सुरेश जी के डांटने से, इसलिए सुरेश जी कह रहे हैं कि इसके पीछे ना इंटेंशन भी रोल प्ले करती होगी। तो सिस्टर शिवानी समझा रही है both the intention behind the action and the vibration that were sent to that soul for a long time, and not just that during particular incident play a role in this case। तो यहाँ पे इंटेंशन और वाइब्रेशन दोनों का ही रोल। इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, एक्शन यानी कि जो स्कोल्ड करना, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था वो। और जो इस सोल के लिए यानी कि इनकी नीज के लिए जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती गई थी एक लंबे समय से, सिर्फ उस टाइम नहीं जब वो उनको डांट रहे थे, बल्कि एक लंबे समय से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती गई, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। Your niece did not feel bad when you scolded her because you must have been sending her loving and accepting energy through it. Your brother, on the other hand, might have been critical or judgmental of her in his mind, and she must have received those vibrations over a period of time। आपका जो भाई था वो हो सकता है ना कि वो क्रिटिकल या जजमेंटल रहा हो, तो इस टाइप के वाइब्रेशंस आपकी नीज तक पहुंचे उनसे, और आप उनको लविंग एंड एक्सेप्टिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। So depending on the kind of vibration she received from both of you over the years, her response was different। इसीलिए जो वाइब्रेशन इतने साल से रिसीव होती गई, इस वजह से जो आपके नीज का रिस्पॉन्स था दोनों के होल्ड करने में वो डिफरेंट था। शी वॉज नॉट हर्ट बाई दोज फ्यू वर्ड्स स्पोकन टू हर, बट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन शी हैड रिसीव्ड इन टोटलिटी। तो वो हर्ट उन वर्ड से नहीं हुई थी जो स्कोल्ड करते वक्त आपने बोले, वो उन वाइब्रेशन से हर्ट हुई थी जो कि उनको टोटल में मिले थे। If a person can receive your vibrations in 3 days, as you mentioned in your initial example, how much negative energy would be accumulated over many years? To clear such a fire of negativity is completely in our hands। अगर किसी पर्सन को हमारी वाइब्रेशन सिर्फ 3 दिन में मिल सकती है, जैसे इनिशियल एग्जाम्पल था वो टीम मेंबर का, तो अगर 3 दिन में इतनी वाइब्रेशन उसको रिसीव हो जाए कि वो क्विट करके चले जाए, तो इतने सालों में जो वाइब्रेशन मिली है वो एक्यूमुलेट नहीं होंगी। अब ये जो पाइल ऑफ नेगेटिविटी है, इतना सारा जो नेगेटिविटी मतलब रिसीव हो गया है, इसको क्लियर करना हमारे खुद के हाथों में है। हाउ कैन वी डू दैट? आई रियली वांट टू नो। सुरेश से पूछना है कि हम कैसे कर सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। वैसे तो ये हम सभी जानना चाहते हैं। Sister Shivani explained that instead of creating negative energy for someone, when we do not agree with his actions, we have to find a solution for it। किसी के बारे में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने की जगह हमें उसके लिए कोई सॉल्यूशन खोजना चाहिए। जब हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट में नहीं है, लेकिन हमें उनके लिए नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने की जगह कोई सॉल्यूशन खोजना चाहिए उस सिचुएशन का। Even in the worst case, when we can no longer work with that person or live with him, we must not give ourselves the liberty to label them label him or to keep pondering over his mistakes because that accumulates negative charge। कोई वर्स्ट केस भी होता है जब हमें उनके साथ अब काम नहीं करना, उनसे मिलना नहीं, उनके साथ नहीं रहना है, तभी भी हमें खुद को ये लिबर्टी या आजादी नहीं देनी है कि हम उनको कुछ भी लेबल कर दें या फिर उनकी मिस्टेक्स के बारे में ही सोचते रहें, क्योंकि ये दोनों चीजों से क्या होगी, नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। दिस नेगेटिव एनर्जी रीचेस हिम एंड ही थ्रोस इट बैक एट अस। और ये जो नेगेटिव एनर्जी फिर एक्यूमुलेट हो जाएगी ना, ये उन तक पहुंचेगी और फिर वो भी हम तक कुछ थ्रो करेंगे। इन दिस वे अ पिंग पोंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी बिगिंस। इस तरह से क्या होगा है, एक पिंग पोंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी शुरू होता है। इधर से इन्होंने किया, उधर से इन्होंने किया, दोनों नेगेटिव एनर्जीज ही सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को। जब नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं तो क्या होता है, फर्स्टली पहले तो हमने क्रिएट करा है थॉट, तो हमें खुद को डिप्लीट करेगी, फिर जिसके लिए क्रिएट किया उस तक पहुंची, उसे डिप्लीट करेगी।
उसके बाद में उन्होंने फिर से हमें भेजी, फिर उसने डिप्लीट करी उस नेगेटिव थॉट ने। अब ये चलता रहेगा, इसीलिए लिखा है पिंग पोंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी। वी मस्ट अवॉइड प्लेइंग दिस गेम विद एनीवन। ये गेम हमें किसी के साथ में प्ले नहीं करना है, ये हमें अवॉइड करना है। If we at all want to, let us exchange only positive energy। अगर हमें ये पिंग पोंग ऑफ एनर्जी प्ले करना भी है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना चाहिए। मतलब हमने अच्छा सोचा किसी के बारे में, उन्होंने भी हमारे लिए अच्छा सोचा, हम तक वो पॉजिटिव एनर्जी पहुंची। पॉजिटिव एनर्जी से क्या होती है, सोल पावर इंक्रीज होती है। पहले हमने किसी के बारे में कुछ गुड थॉट्स क्रिएट करे, तो हम एम्पावर हुए, फिर वो गुड थॉट्स उन तक पहुंचे, फिर वो भी एम्पावर हुए, फिर वो भी हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हम फिर एम्पावर हो रहे हैं। तो ये पिंग पोंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। If we already know that someone has the habit of lying, we must find a way to work with it। अगर हमें पता है किसी का हैबिट है कि वो झूठ बोलता है, तो हमें उसके साथ काम करने का कोई तरीका सोचना होगा। If someone has the habit of insulting, we must prepare our response for it। अगर किसी की हैबिट है कि वो इंसल्ट कर देता है बात बात में, उसके साथ काम करने के लिए हमें उसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना होगा। If someone is not sincere at work, we should see how we can manage with that। अगर कोई सिंसियर नहीं है वर्क में, तो हमें देखना होगा कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन एंड मोल्ड आवरसेल्व्स सच दैट वी कैन वर्क आउट अ सॉल्यूशन फॉर आवरसेल्व्स। जो भी पर्सन है जिसके साथ हम काम में आ रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो जो जैसा है उसको वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन खुद को मोल्ड करना होगा, खुद को एडजस्ट करना होगा कि हम एक सॉल्यूशन अपने खुद के लिए खोज पाए, सॉल्यूशन फॉर आवरसेल्व्स। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कंटिन्यू टू वर्क विद सच पीपल बाय कॉन्स्टेंटली सेंडिंग देम हेवी एनर्जी। पर हम अपने आप को मोल्ड करने की जगह क्या करते हैं, वैसे लोगों के साथ काम करते जाते हैं, पर कॉन्स्टेंटली उनको हेवी एनर्जी सेंड करते हैं। और जब हम हेवी एनर्जी सेंड करते हैं, तो डिप्लीट्स अस, वो हमें डिप्लीट करती है, उसके बाद उनको पहुंचती है एंड डिप्लीट्स देम। और उसके बाद वो जो रिलेशनशिप होता है वो वीकन हो जाता है। Mantras for being loved. When we create heavy negative thoughts for others, we reach them irrespective of our physical distance from them. Even if we behave nicely with them, they will catch our negative thoughts। जो एकदम स्टार्टिंग में लाइन लिखी थी ना कि हमारी जो थॉट्स है, our thoughts reach someone before our actions। जो हम एक्शन करते हैं, मान लीजिए अगर हम बिहेव करते हैं किसी के साथ बहुत अच्छे से, लेकिन हम उनके बारे में मन मन में नेगेटिवली सोच रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो उनको पहले ही पहुंच जाएंगे। भले हम कितनी भी दूर से उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, पर वो नेगेटिव थॉट्स उनको कैच हो ही जाएंगे। Our negative thoughts about people will vibrate to them and they will create similar thoughts and emotions about us। Souls catch our message and respond accordingly। जो हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, तो फिर वो उन तक वाइब्रेट हो जाते हैं, और फिर वो भी हमारे बारे में वैसे ही सिमिलर थॉट्स और इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो हम क्या है, हम सारी सोल्स हैं। हम सोल्स जो होती है, वो मैसेज रिसीव कर लेती है और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है उसी वे में दूसरी सोल के लिए जिसने क्रिएट किया होता है। Our negative thoughts first deplete our energy, then reach them and deplete their energy, and then have an effect on our relationship। जो नेगेटिव थॉट हम क्रिएट करेंगे, पहले वो हमें डिप्लीट करेगी, उसके बाद उनको पहुंचेगी, फिर उन्हें भी डिप्लीट करेगी, और फिर जो हमारा रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करेगी। When someone is hurt because of the thoughts or words we created for him, and our issues still remain unresolved, he will carry the wounds। जब हम हर्ट होते हैं, जब हमारी वजह से कोई हर्ट होता है, जो थॉट्स होते हैं हमारे, हमारे थॉट से या फिर जो हमने बोला होता है उनको, उस वजह से अगर कोई हर्ट होता है और हमारा जो इश्यू है उनके साथ वो अनरिजॉल्व रहता है, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो वो जो होगा ना, वो जो घाव है, वो वुंड है, उसको जो लगा है वो पेन, वो अपने साथ में कैरी करेगा। He will then create negative thoughts for us whenever he thinks of us। These thoughts will reach us and deplete our energy। उसके बाद में वो नेगेटिव थॉट्स हमारे बारे में क्रिएट करेगा, जब भी वो हमारे बारे में सोचेगा,
और फिर ये जो थॉट है हम तक पहुंचेगी और फिर हमारी एनर्जी डिप्लीट होगी। लेट अस अंडरस्टैंड अदर पीपल्स संस्कार्स एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू लिव और वर्क विद देम। लेट अस टेक केयर दैट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर नेगेटिव संस्कार एंड डिप्लीटिंग आवर एनर्जी। जो लोग हैं उनके संस्कार को अंडरस्टैंड करना है हमें। जो अक्वायर्ड लेयर्स जमा हो गई है, ओरिजिनली तो सारी सोर्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्योर है, तो ये जो अक्वायर्ड लेयर्स की वजह से अक्वायर्ड जो संस्कार है उनको हमें अंडरस्टैंड करना है और हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम किस तरह से उनके साथ रहें, उनके साथ काम करें। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उनके बारे में, उनके जो नेगेटिव संस्कार है ना, जो हमें दिख रहे हैं, नेगेटिव हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स, जो हमने एक बार एक चैप्टर में भी पढ़ा था, ही इज अ गुड बॉय विद बैड हैबिट, ही इज नॉट अ बैड बॉय, ऐसे हमने पढ़ा था ना। तो हमें उनके बारे में ऐसे खराब नहीं सोचना है कुछ भी, उनके नेगेटिव संस्कार के बारे में हमें नहीं सोचते रहना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव संस्कार के बारे में, उनकी नेगेटिविटी को, बैड हैबिट्स को देखकर भी सोचते रहेंगे तो हमारी खुद की एनर्जी डिप्लीट होती है। और हमें खुद को एम्पावर करना है, इसलिए छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो सोल पावर है वो चार्ज रहे। जब एक चार्ज बैटरी होगी हमारी, तो वो और लोगों को भी चार्ज करेंगे। इसे एक बार मेडिटेशन करते हैं। सिट बैक comfortably. Let me look at myself. I, the soul, am the powers whose thoughts and feelings reach those for whom they are created. पावर्स है जो भी थॉट्स और फीलिंग्स हम दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं वो उन तक पहुंचती है। Whether I'm sitting in a closed room or miles away, my thoughts for others reach them. चाहे हम क्लोज रूम में रहें, चाहे बहुत दूर रहें, लेकिन हमारी जो थॉट्स है दूसरों तक वो पहुंचेगी। Others create thoughts corresponding to the energy they receive from me. दूसरे वो थॉट्स क्रिएट करते हैं जो कि हमारी जो एनर्जी उनको रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे लिए भी थॉट्स क्रिएट करेंगे एंड दैट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप। और यही हमारे रिलेशनशिप की एक फाउंडेशन है। तो ध्यान कहाँ रखना है हमें? हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि पहले हमसे वो एनर्जी एक्सचेंज बिगिन हो रहा है। From today, I pay attention to the thoughts I create for everyone. आज से हम क्या ध्यान रखेंगे? I अपने ऊपर ध्यान रखेंगे। जो भी थॉट्स हम दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। Be it friends, family or strangers, I don't tolerate their behavior or negativities. चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, स्ट्रेंजर्स हो, पर इनके बिहेवियर, इनके नेगेटिविटी के ऊपर हम सोचते नहीं हैं। I put a full stop. I put a full stop. I understand them and adopt myself to be with them. हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को अडॉप्ट करना है। अपने आप को मोल्ड करेंगे कि हम उनके साथ में वर्क करें, चाहे लिव कर पाए। I remember that though they carry certain negative संस्कार्स, they are originally beautiful souls. क्या ध्यान रखें? भले ही वे नेगेटिव संस्कार कैरी करते हैं, originally every soul is very beautiful, very pure. My thoughts are pure and I pay attention to my thoughts. मेरे थॉट्स प्योर हैं। ये एफर्म हमें डेली करना है कि मेरे थॉट्स प्योर है, पॉजिटिव है, इनोवेटिव है। सुबह सुबह ही अगर हम इस टाइप के इसी क्वालिटी के थॉट्स से क्रिएट करते रहेंगे तो हमारा पॉजिटिव कर्मा बिल्ड होते रहेगा। आई पे अटेंशन टू माय कर्मा। कर्मा जानते हैं ना हम? कर्मा थॉट्स, एक्शन, फीलिंग सब कुछ मिला के होता है, उसमें थॉट्स भी काउंट होते हैं। तो हमें अपने थॉट्स को प्योर रखना है। हाउ आई डील विद अदर्स इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कैसे दूसरों के साथ डील करते हैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। रूप से हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान रखना है। जो भी थॉट्स हम क्रिएट करेंगे दूसरों के बारे में वो फाउंडेशन है हमारी रिलेशनशिप। हमें ध्यान रखना है किसी को हर्ट नहीं करना।
Irrespective of how they behave with me, my each thought creates my destiny. चाहे कोई कैसे भी बिहेव करे, चाहे कैसी भी सिचुएशन ही लाइफ, लेकिन जो मेरी थॉट है वही मेरी डेस्टिनी क्रिएट करे। संकल्प से सृष्टि होती है। शांति। Thank you everyone for joining.